Good morning, Honorable Principal Sir, my dear colleague. I am Vijay Tiwari, teacher of Sri Krishna Vidya Mandir, Ramgarh. It is my privilege that I have got a chance to put my word view on the topic joyful mathematics. So, dear teacher, I will be explaining my view on the topic joyful mathematics. Let's start the session without delaying a single minute. Welcome all educators, Joyful Mathematics. Joyful Mathematics, how to make your maths class interesting. Now, we have to start. Dear colleagues, as we know that kids are very intuitive. There needs to be explained the importance of maths in their daily life at an early age for them to enjoy doing its innocence, doing it without the love for the subject. Maths in daily life. When I am ever going to use maths, the truth is that we use maths all the time. It is present to note how on experience mathematical applications in daily life from the time one gets up from bed till one goes to bed in the night. Be it a cook for a farmer, a carpenter or mechanic, a shopkeeper or a doctor, an engineer or a scientist, a musician or a magician, an artist or a tailor. Everyone needs maths in daily life. Why is maths important in our daily life? For a question, good questions. Math is a very useful in everyday life. Maths can help us to do many things that are important in our everyday life. Here are some daily tasks for which maths is important for us or everyone. Managing time. Keeping a track of time is very important to do all you love to do. Budgeting. Managing money, understanding discount and buying for the best price. Sports. Score time, strategizing to win. Cooking. Measuring the ingredients to add a recipe. Kitchen inventory planning. Exercise and dieting. Driving, distance, home, decorating, stitching, critical thinking, the base of other subjects. Now, let us explain each point one by one. Managing time. First, managing time. Now, we have to start managing time. When we get up the morning, we see the time of walking to verify whether we have enough time to complete various tasks like awareness of time, reading a clock, watch, planning routines, tasks. Our task is encouraging the kid to make a daily timetable. For example, now we start for the kids, encouraging the kids to make a daily timetable for their daily activity, allotting time for their hobbies, academics, leisure, sports, etc. हम लोग इसके लिए एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे होते जल्दी नहीं समझ पाते हम लोग, तो छोटे बच्चों को हम लोग ये बोल सकते हैं कि बेटा ऐसा करो तुम लोग कि आज अपना तुम लोग एक डेली रूटीन बनाओ. छोटे स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा इंजॉय करेंगे. बच्चे ये करेंगे कि हम लोग उसको सर अपना टाइम टेबल खुद बनाएंगे. ठीक है, बच्चे क्या करेंगे कि सुबह जैसे डेली उठेंगे विद द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के हेल्प से वो बच्चे उठते हैं, वो टाइम मेंटेन करेंगे. छोटे बच्चे हैं, वो लोग अपने जो भी टाइम सेट करेंगे वो हमें नोट करवाना है उनकी कॉपी में. वो बच्चे कितनी देर खेलें, कितनी देर टीवी देखें, कितनी देर होमवर्क बनाएं, वो हमें उन बच्चों से करवाना है. इससे क्या होगा कि बच्चे इंजॉय करेंगे. जॉयफुल मैथमेटिक्स हमारा टॉपिक ही है
तो बच्चे थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, इट्स मीन्स कि वो थोड़ा सा मैथ्स को वैल्यू देंगे और मैथ से उनका जो फेयर है, डर है, वो थोड़ा सा हट जाएगा। तो बच्चे खुद स्टार्टिंग पीरियड कि वो खुद अपना टाइम मैनेजमेंट करें। तो ये हो गया मैनेजिंग टाइम फॉर एवरी किड्स इन एवरी स्टेज। नाउ नेक्स्ट वन, बजटिंग। Budgeting means how much is the shirt or blouse going to cost, one of 50% sale is applied। अभी हम लोग डेली लाइफ देखते हैं, मॉल्स जाते हैं, हम लोग मॉल्स देखते हैं कि दैट इज अ 50% ऑफ है, 50 प्लस 30% ऑफ है इन सुपर मार्केट्स, या इट मीन्स अभी हम लोग नाइनो हम लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, 1 by 1 गेट्स डिस्काउंट मिलता है हमें। तो उस चीज़ में भी हम लोग मैथ्स अप्लाई कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, अगर हमें मैथ्स के साथ में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना है। तो हम लोग कहते हैं व्हाट अबाउट वन टैक्स आर एडेड। टैक्स में भी हम लोग देखते हैं कि मैथ्स के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा जरूरी है। डू यू प्रिफर टू गेदर योर थिंग्स एंड होप फॉर ए ग्रेट डील ऑन द कैश काउंटर। हम लोग कैश काउंटर जाते हैं, हम लोग आस्क करते हैं कि सर एनी डिस्काउंट। आई थिंक किसी भी मार्केट प्लेस में जाते हैं हम लोग कि हमारा राउंड अप कर दो। जैसे हमारे पास आई थिंक वी हैव टू कोई किसी चीज़ का परचेजिंग का बिल हमारा 72.50 पैसा होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि राउंड अप 70 रुपीज़ ले लीजिए सर, या 50 रुपीज़ ले लीजिए। तो ये हम लोग क्या डिस्काउंट कर रहे हैं, दिस इज द बजटिंग। ये हमारा बजट हो गया कि हम लोग जो बजट है हमारा 30 रुपीज़ का बजट हमने बनाया कि आज हम सब्जी मार्केट जा रहे हैं, गोइंग टू द बाइंग द वेजिटेबल्स इन द मार्केट, एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट द बजटिंग कि 10 रुपीज़ का हमें पोटैटो लेना है, 10 रुपीज़ इट मीन्स हमें क्या समथिंग और अदर गुड्स लेने हैं। नाउ वी हैव सीन दैट एवरी ईयर गवर्नमेंट प्रेजेंट बजट। हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट प्रेजेंट बजट करता है, दैट इज हाउ मच टू पे ऑन व्हाट थिंग्स। वो लोग देखते हैं कि कुछ जीएसटी लगाए हमारे पास में, इट मीन्स कि सम गुड्स हैव द 28% जीएसटी, सम गुड्स हैव 18%, सम गुड्स 12%, एंड सम इसेंशियल गुड्स आर द 5% जीएसटी रेट। तो ये सब भी हम लोग देख सकते हैं कि गवर्नमेंट भी हमारे पास में मैथ्स का यूज़ करता है, हर जगह हमारा मैथ्स का जो है बजट के टाइम में मैथ्स का यूज है। हम लोग घर में इट मीन्स हमारी मम्मी हमारे जो गार्जियंस हैं या हमारे जो आगे सक्सेसर जो होने वाले हैं वो लोग भी मैथ्स यूज़ करते हैं। अब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एवरीवन जो भी हम लोग यहाँ पे होते हैं बाई बर्थ टू डेथ हम लोग सबको देखते हैं कि हम लोग मैथ्स का यूज़ कर ही लेते हैं, चाहे वो थिंग्स कैसा भी हो, किसी तरह ना भी हो। हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि हम लोग मूवी जाते हैं, तो हम लोग मूवी जाते हैं तो सब कुछ एक्ट्रेस जो है उनको पेड किया जाता है कि इतने इमोशन उनको मिलेंगे, इतनी देर वर्कआउट करेंगे। टीचर्स लाइक कॉपी चेक करते हैं, तो उन लोगों कॉपी चेक करने पे भी उनको नंबर ऑफ कॉपीज़ ये हैं, तो उनको भी कुछ परसेंटेज उनका रिम्यूनरेशन दिया जाता है कि पर डे ये इतना वर्कआउट करेंगे। चाहे वो एसएसटी टीचर हो, चाहे वो लिटरेचर टीचर हो, चाहे वो हिंदी टीचर हो, वो सभी कोई इट्स मैथ्स का यूज़ कर ही लेते हैं कि नंबर ऑफ कॉपीज इंटू नंबर ऑफ रिम्यूनरेशन। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि वो बजट उससे हम लोग का ये सब बना सकते हैं। नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, या टास्क लेते हैं इसके ऊपर कि हम लोग स्टूडेंट्स को इसके ऊपर कैसे सेट कर दें। तो टास्क लेते हैं कि हम लोग एक पिगी बैंक बनाते हैं, स्टूडेंट्स को बोलते हैं, छोटे बच्चों को बोलेंगे स्टूडेंट्स को कि आप एक पिगी बैंक बना लो, उसमें पर डे का लिए आपने एक जो भी है कॉइन डालो, उसके अंदर डालो, और आफ्टर 30 डेज वो उस पिगी बैंक को ओपन करो और आप उससे काउंट करवाओ कि कितने आपने उसको काउंट आउट कर लिया। तो ये एक मैथ्स का काउंटिंग स्टेटस भी बहुत अच्छा हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए कि पर डे अगर वो 1 कॉइन डाल रहा है तो आफ्टर 30 डेज उसके पास कितने रुपीज़ के कॉइन आपने हो गया, टोटल हाउ मच मनी वो जनरेट कर लिया। नाउ लेट्स बी एक्सप्लेन द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सरसाइज एंड डाइटिंग। इट्स so important आज अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो हम लोग देख सकते हैं कि बहुत लोग आज जिम ज्वाइन करते हैं या होम मेड एक्सरसाइज करते हैं हमारे पास में। तो वो लोग जो भी एक्सरसाइज का शेड्यूल्ड करते हैं तो देखते हैं कि काउंटिंग करना है 10 सेकेंड 15 सेकेंड, दे हैव टू स्टार्ट देयर वॉक। लाइक प्लैंक हम लोग करते हैं फॉर द बेली फैट रिड्यूस करने के लिए, तो उसमें भी लोग देखते हैं कि पुशअप्स करते हैं हम लोग, या कि 15 पुशअप्स करने हैं, 3 सेट्स करने हैं एक्सरसाइज, है ना, 4 टाइम्स एक्सरसाइज करना है। एक सेट हमारा है, 3 सेट करने हैं हमारे पास में, 15 के 3 सेट्स करने हैं। तो हम लोग वहाँ भी हम लोग मैथ्स का यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम लोग छोटे से बच्चों को थोड़ा सा पनिशमेंट भी देते हैं कि दे डू द सीटअप्स इन क्लासरूम। अगर हमारे बच्चे कुछ होमवर्क नहीं करके आते हैं तो हम लोग उसको एक्सरसाइज करवाते हैं। इट मीन्स हम लोग बोले नाउ स्टूडेंट गेट द 10 सिटअप, तो बच्चे भी 10 सिटअप करते हैं, तो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो लोग यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड सो ऑन। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये सेट है हमारे पास में,
So now we set our routine according to workout schedule. Count the number of repetition while exercising, etc. Just bas on the maths टास्क. अगर हम इस पे क्या टास्क दे सकते हैं बच्चों को कि हम लोग को एक्सरसाइज के लिए क्या काम करना है, तो हम लोग किड्स को एक पार्टिसिपेट कराएंगे एनी एक्सरसाइज लाइक स्किपिंग. हम लोग स्टूडेंट्स को बोलेंगे आपको एक गेम बना देंगे, ग्रुप बना देंगे हम लोग सारे स्टूडेंट्स को कि आप एक ग्रुप में हो जाओ, 5 के ग्रुप में या 10 के ग्रुप में हम लोग वो सब सेट कर लेंगे. और स्टूडेंट्स को ये बोलेंगे कि आप ग्रुप बना लो बेटा और आप स्किपिंग करो, कुछ ग्रुप स्किपिंग करेगा, कुछ ग्रुप पुशअप करेगा, कुछ ग्रुप रनिंग करेंगे. तो सम सो डिफरेंट काउंटिंग्स है हमारे पास में, वो स्टूडेंट्स को टास्क दे देंगे और स्टूडेंट डू देयर टास्क बाय द मैथमेटिक्स. फॉर काउंटिंग वन स्टूडेंट काउंट किया 1 2 3 4 लाइक स्टूडेंट काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, एडिंग स्टार्ट करेंगे, हाउ मच स्टूडेंट्स आर गेट देयर चांस ऑफ मार्क्स, वो ऐड सीखेंगे. सब्ट्रैक्शन करना है हमारे पास में, उस ग्रुप से किसी कोई 2 पर्सन को हम लोग नेक्स्ट ग्रुप में डाल दिए तो अब बोलेंगे हम लोग कि आपके ग्रुप में हमारे पास कितने पर्सन हैं हमारे पास में, या तुम लोग कितने स्टूडेंट्स हो. ये सब हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं, मैथ्स के साथ में इंजॉय कर सकते हैं हम लोग. नेक्स्ट यूजिंग द स्पोर्ट्स इन मैथ्स. अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स या नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं कि स्पोर्ट्स में भी हम लोग क्या क्या मैथ्स का यूजिंग कर सकते हैं. बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ्स आल्सो हेल्प कीप ट्रैक्स द स्कोर ऑफ एवरी स्पोर्ट्स एक्टिविटी. अब मैथ्स जो हमारे पास में है वो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं स्पोर्ट्स में भी, इसके लिए भी है. हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, स्कोर काउंटिंग करना रहता है. हम लोग किसी और जब बैडमिंटन खेलते हैं तभी स्कोर काउंटिंग करना है. फुटबॉल खेलते हैं टाइमिंग चलता है हमारे पास में, कबड्डी का भी टाइमिंग है हमारे पास में, जितने भी हमारे नेशनल स्पोर्ट्स हैं हमारे पास में. रनिंग है, हम लोग देख सकते हैं कि उसेन बोल्ट हमारे फास्टेस्ट रनर है हमारे पास में, तो उनका भी 100 मीटर रेस है. तो 100 मीटर रेस इन पॉइंट तो 7 या 9 सेकेंड आई थिंक उनका रिकॉर्ड है. तो वो जो सेकेंड है ये मैथ्स का ही यूजेस है वहाँ पे. तो हम लोग कैसे स्पोर्ट्स का यूज़ करना है उसके बारे में हम लोग देखते हैं. बेसिक नॉलेज उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एक्टिविटीज़ के लिए. ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री कैन आल्सो हेल्प द टीम टू हु वांट टू इम्प्रूव देयर स्किल इन स्पोर्ट्स लाइक दिस. इन IPL एवरीवन सीन द IPL में लोग देखते हैं कि जैसे ही कोई क्रिकेटर एक हिट करता है 6 जाता है तो बोलते हैं इतनी मीटर्स का उन्होंने छक्का मारा है ना. तो ट्रेजेक्ट्री मोशन हो जाएगा वो वहाँ पे हम लोग सीखते हैं. इट मीन्स कि जब भी हम लोग देखते हैं कि धोनी, एवरीवन नो अबाउट द धोनी जब 6 मारते हैं तो हाँ 9 स्टेडियम के पार चला गया. तो कैसे कोई जाके वहाँ थोड़ी ना करता, वो सब डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, हाइट फाइंड करते हैं, इतनी लंबी दूरी का जो स्टैंड है स्टेडियम के पार चला गया बॉल. तो ये हम लोग सेटअप कर पाते हैं. तो हम लोग जब बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ्स है तो हम लोग वहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं. इट कैन हेल्प द बेस्ट फाइंड द वे ऑफ हिट द बॉल, मेक ए बास्केट और रन अराउंड द ट्रैक. अब इसमें हम लोग क्या क्या टास्क दे सकते हैं, बच्चे स्पोर्ट्स से कैसे सीख सकते हैं. इंट्रोड्यूस किड द न्यू स्पोर्ट्स ऑन द टीवी एंड लेट देम जज द विनिंग टीम. हम लोग एक गेम स्टूडेंट्स को दिखाएंगे या वहाँ पे कराएंगे कि दोनों स्कोर बोर्ड चल रहा है हमारे पास में. फॉर लाइक अदर कबड्डी का मैच हम लोग उनको सीन कराएंगे एक्टिविटी में, और वहाँ पे स्कोर टीम A एंड टीम B का स्कोर उनको दिखाएंगे कि 20 मिनट्स का जो भी है हमारे पास में है. तो बच्चे वहाँ पे स्टूडेंट्स हमें हेल्प करेंगे कि विच टीम आर द हुज टीम वोन, कौन सा और टीम लॉस कर रहा है देयर मैच. या फिर हमारे स्कूल में जब भी टीम का मैच कराएंगे लाइक एज ए वॉलीबॉल मैच, वहाँ पे स्कोर काउंट करवाएंगे स्टूडेंट्स से. वहाँ पे बोलेंगे विच टीम A एंड टीम B लूज देयर मैच. तो इससे हम लोग स्पोर्ट्स में भी यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट काम कर सकते हैं. नाउ अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं कुकिंग एंड होम. कैसे हमारे घरों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मैथ्स का क्या यूज़ होता है. रेसिपी लाइक जैसे हम लोग घरों में जाते हैं अब हमारी मम्मी या हमारे घर में जो भी हमारे जो होते हैं बहनें होती हैं वो क्या यूज़ कराती हैं हमारे पास, तो वो लोग चाय बनाते हैं. टी में मेकिंग हो रहा है वहाँ पे पता चलता है कि टी है तो हम लोग 3 स्पून हमारे पे शुगर डालना है, ऐड करना है, 1 कप मिल्क डालना है, हाफ कप वाटर डालना है. तो यहाँ पे भी हमारे पास में मैथ्स यूज़ हो जाता है कि इतने अमाउंट्स ऑफ पर्सन के लिए अगर हम लोग टी मेक कर रहे हैं तो हाउ मच अमाउंट में या क्वांटिटी या रेशियो में है हमारे पास में कि हम लोग उस इंग्रेडिएंट को वहाँ पे सेटअप कर पाते हैं. फॉर दिस द रेसिपी कॉल फॉर 3 टेस्पून्स ऑफ सॉल्ट. We only have a teaspoon or a spoon. The recipe call for 2 cups, but we only have a quarter cup of measuring tool and half cup measuring tools. How much added up to 2? We will know the answer. But because they understand maths, fraction and conversion. Our mother, हमारी मदर जो है वो सब चीज़ जानती हैं कि कितना चीनी डालना है, कितना हमारा नमक डालना है. तो हम लोग वो सब बता सकते हैं उस चीज़ को. नाउ टास्क, इसमें स्टूडेंट को इसमें कैसे हम लोग इंजॉय करा सकते हैं कुकिंग में भी.
हम लोग स्टूडेंट्स को टास्क दे सकते हैं कि नाउ डू देयर वर्क, होम में जाए, यहाँ पे एक ग्लास ऑफ वाटर लें एंड ग्लास ऑफ वाटर में नींबू पानी बनाए लाइक अ सॉल्टी, या फिर उसमें बोल सकते हैं कि हम लोग शुगर डाल सकते हैं। दे आर स्टूडेंट्स प्रिपेयर देयर देम सेल्फ कि वन ग्लास ऑफ वाटर में हम लोग हाउ मच शुगर ऐड कर सकते हैं, कितने स्पून्स, या फिर हाउ मच सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। तो दे अंडरस्टैंड एंड दे स्टार्ट देयर वर्क, उनका ब्रेन काम करेगा, वो लोग सोचेंगे एंड हेल्प करेंगे, एंड देन यू फाइंड द फ्रैक्शन, वो उससे फ्रैक्शन सीख पाएंगे कि हाउ मच फ्रैक्शन की वन ऑफ ग्लास ऑफ वाटर में आप लोग हाउ मच स्पून डाल सकते हैं, यानी उसका फ्रैक्शन का काउंटिंग उनके ब्रेन में सेटअप कर पाएगा। तो डेली लाइफ का एग्जाम्पल अगर हम लोग उनको देंगे, वो जो डेली लाइफ में सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो लोग बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। डियर कलीग्स, ड्राइविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरीवन अभी आज जो सीनियरियो हमारे पास चल रहा है, ड्राइविंग भी बहुत लोग हमारे पास करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, उनसे भी हम लोग स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल देते हैं। और छोटे किड्स जो होते हैं वो ड्राइविंग को बहुत ज़्यादा प्लेजर के साथ देखते हैं। आप लोग सभी कोई बचपन में देखे ही होंगे कि हमारे पेरेंट्स जो हैं, कोई भी व्हीकल्स था, हमें आगे बैठाते हैं, हम लोग आगे बैठते हैं, या आजकल भी कोई सीन करते हैं, आप लोग छोटे बच्चे होते हैं, वो किड्स आगे व्हीकल के आगे बैठ जाते हैं, वो देखते हैं, वहाँ भी वो काउंटिंग देखते हैं, स्पीडोमीटर वो फाइंड आउट कर पाते हैं। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, ड्राइविंग। Operating a car or a motorcycle is ultimately nothing but a series of calculation. Sorry. How many kilometers needed to reach the destination? So they want, we have to start, we are coming to the school from the home. What kilometers we have to, spending our time, destination, speed, how much petrol in the car, how many kilometers per hour I am able to drive, how many kilometers per liter does my car get or bike get. Oh no, I have hit a traffic jam. How much traffic jam? कितनी देर हम लोग ट्रैफिक जाम में फंसे रहे हैं, कितनी देर हमें पहले निकलना है कि वी हैव टू रीच द स्कूल ऑन टाइम, बिफोर द टाइम. Okay, now I still going to make it or work on time. All of these questions are extremely easily answered with basic math skill. हम लोग सभी को इसको बेसिक मैथ स्किल अगर सीखते हैं तो हम लोग इसको आंसर दे सकते हैं. Now we have to start the tasks on this topic for the students. क्या क्या टास्क हम लोग दे सकते हैं, उसमें से पहला हम लोग का टास्क ये कर सकते हैं, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस. स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम स्कूल बाय द बस, दे वांट टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस बाय यूजिंग द डिस्टेंस एंड टाइम ट्रेवल. कब वो बस के ऊपर बैठते हैं, अपने घर के पास कब वो बैठे और स्कूल कब पहुँचे, तो वो टाइम नोट करेंगे. डिस्टेंस उनको पता होगा कि आप 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इतने देर में पहुँचे, तो उससे वो मैथ्स का यूज़ करके स्पीड निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये बेसिक जो फन है मैथ्स का, जॉयफुल करते हुए वो पर डे क्या कर रहे हैं, हमारे पास में बस से आ रहे हैं, फिर स्कूल में आ रहे हैं, कितने स्टेयर काउंट करके, अगर उनका जो क्लासरूम है स्टूडेंट्स का, हाउ मेनी स्टेयर्स वो काउंट करके ऊपर चढ़ रहे हैं, किस क्लास में जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, राइट साइड, तो डिस्टेंस एज वेल एज डायरेक्शन वो लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे. डू डे टू डे लाइफ, देन द मैथ्स जो हम लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा टफ है, वो इजी होगा. बच्चों को सिर्फ फेयर हटाना है, हमें ये नहीं करना है कि बच्चों को हम लोग ज़बरदस्ती मैथ्स को थोप दिया जाए कि हाँ बेटा हमको ये क्वेश्चन आपको बना के कर लेके आना, ये लर्न करके आना. वो नहीं करना, हमें पहले बच्चों को मैथ्स से ईजी कराना, ईजी टू यूज़. नाउ आप लोग अभी स्क्रीन में देख सकते हैं कि एक जंबल वर्ड टाइप का आपको दिख रहा होगा कि जैसे बच्चों को हम लोग जो क्लासरूम में भेजते हैं, और बच्चे जैसे क्लासरूम में बोर्ड में हम लोग बच्चे देखते हैं उनको मैथ्स कैसा सीन हो सकता है, वो उस टाइप का आप लोग एक स्क्रीन देख सकते हैं. अभी स्क्रीन में आपको कुछ दिख रहा होगा कि कुछ लेटर हैं. अब इस लेटर को मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़ो. एवरी माय डियर कलीग्स प्लीज़ इसको रीड कीजिए, और कैसे आप लोग रीड कर पाते हैं वो आप थोड़ा देखिए. वेरी गुड, आप लोग सभी लोगों ने स्लाइड्स तो अभी देख लिया होगा. थोड़ा डिफ़िकल्ट आपको हुआ होगा, मैंने जानबूझ के ये स्लाइड आपको उल्टा लगाया है कि जब इसी टाइप के हम लोग क्लासरूम में क्या करते हैं कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं होते किसी सब्जेक्ट में,
आप क्लासरूम में जाइए, बोर्ड के ऊपर जाइए और ऐसे ही कुछ कुछ उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में कुछ चीज़ें जो हैं उल्टे कुछ करके लिख दीजिए। तो जैसे ही आप इसको लिखेंगे, सारे स्टूडेंट्स जो है हमारे पास में बहुत ही ज़्यादा फोकसाइज हो जाएंगे, सेंट्रलाइज हो जाएंगे उस लेटर पे। जैसे अभी आप लोग देखा कि आप लोग जब इनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगे तो आपका कंसंट्रेशन स्टार्ट हो गया कि हमें इसे पढ़ना है। अगर मैं इसी चीज़ स्लाइड को अगर सीधा दे देता तो आप लोग तुरंत पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि आपको ये स्लाइड पढ़ना है और उल्टा स्लाइड दिया, तो आप लोग सभी को ही अपने ब्रेन को सेटअप करके एकदम सेंट्रलाइज करके आप लोगों ने स्टार्ट किया पढ़ना। लाइक दिस स्टूडेंट्स भी ऐसे ही हैं। आप जैसे ही उनको पहले कंसंट्रेट कीजिए क्लासरूम में कि कैसे उन लोगों को कंसंट्रेट करवाना, कंसंट्रेशन लेवल को आगे बढ़ाना है कि पहले वो कंसंट्रेट हो। आप जैसे एंट्री करिएगा और पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, नॉट ओनली द मैथ्स, दिस इज द थिंग फॉर द एवरी सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स एकदम बोर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन लेवल स्टार्ट करना है। आप क्लासरूम में जाएं, सबसे पहले स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग जैसे बोलें या गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम में गए आप क्लासरूम में। उसके बाद सबसे पहले स्टूडेंट का कंसंट्रेशन उनको बोर्ड की तरफ सेट करना है कि हम उसका कंसंट्रेशन जो भी हो स्टूडेंट्स का वो बोर्ड की तरफ हो। एवरी स्टूडेंट्स सी द बोर्ड। उसके लिए क्या करना, आपको 2-3 आड़े तिरछे जो लेटर हैं वो पहले राइट डाउन कर दीजिए बोर्ड में, कहीं भी एक कॉर्नर में। उतने जो भी बोर्ड्स हैं उसके ऊपर या तो फिगर है उसको उल्टा चिपकाइए या फिर कोई एक फिगर आप अपने साथ टास्क के साथ ले सकते हैं, जिसको मैथमेटिकल टूल्स बोलते हैं। वो फिगर ले जाइए और बच्चों के सामने वहाँ पे रख दीजिए कि हाँ आज हम लोग ये देखने वाले, ये आप लोग किसी को देखा है ऐसा कुछ फिगर आप लोग ले जा सकते। कुछ मॉन्यूमेंट्स का पिक्चर भी आप ले जा सकते हैं, बहुत सा ऐसा चीज़ लेटर ऑन आज हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये हम लोग कर सकते हैं। तो बच्चे कुछ देर सोचेंगे, वो थिंक अबाउट करेंगे, हाँ यहाँ हम लोग ने ये देखा है, ऐसा देखा है। हम लोग उनको दिखाएंगे एक सर्कल को, अगर हमको बच्चों को सिखाना है कि हमें सर्कल सिखाना है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सन, मेरा जो एग्जाम्पल है, हम लोग सन को एग्जाम्पल ले लेंगे। हम लोग बोलेंगे अच्छा ठीक है, आज मॉर्निंग में कौन कौन उठा है टाइम से। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम लोग उठे हैं, सम ऑफ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बोलेंगे यस सर हम लोग उठे हैं। ओके, मॉर्निंग में सन को किसने किसने देखा। अच्छा, इवनिंग में सनसेट को सन ने किसने देखा है। सभी बच्चे बोलेंगे हाँ सर हमने देखा है। कुछ बच्चे बोलेंगे ओके ठीक है, नाइट में मून को किसने किसने देखा है। तो सभी बच्चे एकदम एक रेज हैंड करेंगे यस मून। तो कैसे देखा है मून, हम मून का कुछ कुछ फिगर बना देंगे, एक फुल मून बना देंगे, एक हल्का सा मून हम लोग हाफ मून बना देंगे। तो हम लोग 3-4 मून का फिगर बना देंगे। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स को शो करवाएंगे कि अच्छा ये कौन कौन किसने किसने देखा है ऐसा। तो पूरी क्लास में एक डिस्कशन कराएंगे। उस टाइम क्या होगा, सारे बच्चे एक्टिव हो गए, चाहे वो हमारे पास में जो भी कम मेमोरी पावर वाले जो स्टूडेंट्स हैं या फिर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, वो सब भी एक्टिव होके वो आंसर जरूर देंगे मून और सन के बारे में, कि वो डेली लाइफ है। तो जैसे ही वो देंगे तो उससे उनका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये हाफ सर्कल है, ये फुल सर्कल है ना, ये क्वार्टर सर्कल है, ये हमारे पास में क्वाड्रेंट है। हम लोग ऐसे ऐसे फिगर उनको उनसे निकलवाएंगे आंसर। हम बता देंगे तो फिर बच्चे बस उसको लर्न कर लेंगे, लेकिन बच्चों को जब हम बताएंगे तो कर लेंगे। इसका एक सबसे अच्छा एक्टिविटी हम लोग अभी कर सकते हैं, हम लोग एक पेज लेंगे, स्क्वायर पेज ले लेंगे। स्क्वायर पेज लेना सबसे पहले, और सारे बच्चों को बोलेंगे टुडे नाउ वी हैव टू स्टार्ट द एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी क्या सिखाना है, फ्रैक्शन सिखा रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स को। तो फ्रैक्शन कैसे सिखाना है क्लासरूम में, तो हम लोग जाएंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स के पास में और सभी को बोलेंगे कि चलो ना ऑल द स्टूडेंट वी हैव टू स्टार्ट द डिस्कस अबाउट द फ्रैक्शन। बोर्ड में हम लोग कहते हैं सबको एक स्क्वायर पेज प्रोवाइड करवाना है। सारे बच्चे स्क्वायर पेज ले लेंगे, उनके साथ में हमारे पास भी रखेंगे और स्क्वायर पेज ले लेंगे और इस स्क्वायर पेज को ऐसे दिखाएंगे स्टूडेंट के सामने में, बोलेंगे ये हमारे पास स्क्वायर पेज है हमारे पास में। उसके बाद हम लोग बोलेंगे चलो इसको ऐसे एकदम हाफ कर लो। सारे स्टूडेंट के साथ में हम लोग एक्टिविटी करेंगे। तो हम लोग सारे स्टूडेंट के साथ उन्होंने एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, एवरी स्टूडेंट स्टार्ट देयर वर्क। फिर बोलेंगे नाउ वन फोल्ड अगेन, फिर वो फोल्ड अगेन कर लेंगे। अब ये अगेन करने के बाद बोलेंगे अब इसको प्रेस कर देंगे पूरी अच्छी तरह से। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ ओपन इट, सारे स्टूडेंट उसके साथ ओपन करेंगे। तो पहले वो सिंगल एक पेज था, सीट था, अब जैसे इसको ओपन करेंगे तो हाउ मेनी सीट्स बन गए, तो काउंटिंग करवाएंगे, एवरी स्टूडेंट द काउंट, हर स्टूडेंट इसमें आंसर दे देगा 1 2 3 4। तो इट मीन्स 1 का 4th पार्ट, दिस इज द फ्रैक्शन, दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू लर्न द फ्रैक्शन। कैसे किसी बच्चे को फ्रैक्शन नहीं आता है, तो 1 का ये 4th पार्ट हो गया। हम लोग अगेन इसके क्या करेंगे, अगेन 1 फोल्ड अगेन कर देंगे, स्टूडेंट्स को बोलेंगे और इंजॉय करेंगे। तो एवरी स्टूडेंट डू देयर सेम, वो खुद अपने आप काम करने लगे, आपको उस टाइम बोलना भी नहीं पड़ेगा, आप थोड़ा देर चुप हो जाइए। उसके बाद देखिए कि सारे स्टूडेंट डिस्कस अबाउट इट एंड एवरीवन हैव द आंसर। सबका पास एक आंसर आ जाएगा कि दैट इज दिस इज माय सर, मैम दिस इज माय।
तो ये आंसर आ जाएगा, तो वो मैथ्स को एंजॉय करने देंगे. ओके, नाउ वी हैव, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. हाउ टू गेमिफाई योर क्लासरूम. बहुत ही अच्छा टॉपिक है. हम लोग इस टॉपिक पर हम लोग ये काम कर सकते हैं, हाउ टू गेमिफाई योर क्लासरूम. हम लोग एक एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, इस क्लासरूम के ऊपर भी हम लोग एक एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, use gamification strategy in your classroom to increase participant engagement, loyalty and competition. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले एक क्लासरूम इंटर करने से पहले आपको मेक अपने आप को सेटअप करना होगा कि आज टुडेज हम क्या करने वाले हैं, अपने स्टूडेंट्स को आज एक कंसंट्रेशन लेवल के साथ में, गेम के साथ में कुछ मैथ्स के टूल्स सिखाने वाले. तो पहले हम लोग माइंड में हम लोग सेट करना होगा कि हम आज इस क्लास में इंटर कर रहे हैं, उस लेवल ऑफ स्टूडेंट लाइक द 4 क्लास 5 क्लास, इट मीन सेकेंडरी लेवल भी हम लोग यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले उसके लिए उस गेम का प्लान कर लेते हैं क्लासरूम इंटर होने से पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आज बच्चों से हमको ये करवाना है. नाउ उस क्लासरूम में जाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को कुछ ग्रुप में करेंगे कि चलो आज गर्ल्स स्टूडेंट्स इस साइड हैं, बॉयज स्टूडेंट इस साइड हैं. ओके, तो नाउ कुछ हम लोग बोर्ड पे जाएंगे. बोर्ड पे जाने के बाद हम लोग कुछ एक टेबल्स मेक कर देंगे. टेबल बना दीजिए. टेबल बनाने के बाद में क्या काम कीजिए आप सबसे पहले कि फर्स्ट ऑफ ऑल उस टेबल में आप लोग ने कुछ डिजिट्स लिख दीजिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगनली कुछ लेटर्स लिख दीजिए, काउंटिंग नंबर्स लिख दीजिए. जो डायगनली आपका 1 to 8 जाए, 8 का स्टार्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टली 1 to 8 आए, और कुछ कुछ लेटर्स ऑफ 1 2 3 4 को मिस कर दीजिए, 5 6 लिख के फिर 7 8 को मिस कर दीजिए. ये मिस कर दीजिए. और एवरीवन गर्ल्स एंड बॉयज स्टूडेंट्स को सेपरेट किए हुए हैं हम लोग. उधर से बोलेंगे टीम ए टीम बी. नाउ टीम ए फिल करेगा सबसे पहले, तो जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है, जो पहले फिल करता है वो सबसे पहले हमारे पास में वो विन करेगा. तो ये गेम कर सकते हैं. ये सबसे अर्ली स्टेज है कि काउंटिंग. नाउ वी हैव टू स्टार्ट द टेबल्स. स्टूडेंट्स टेबल में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज महसूस करते हैं. उनसे जैसे हम लोग पूछते हैं कि बेटा टेबल्स बताओ, तो वो लोग टेबल्स जैसे ही याद करना, रिमेंबर करना हो तो वो पीछे हटने लगते हैं, मैथ से भागने लग जाते हैं. व्हाई नॉट, वी हैव टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक. हम लोग उस टेबल का स्टार्ट करेंगे कि 2 + 2 है एंड देन स्क्वायरिंग करना है इसका, वो हम लोग सिखाएंगे. एक गेम खिलवाएंगे, ये टेबल आपको सुनाना है, ये टेबल ऐसे करना है. इससे क्या होगा कि जो टीम स्पीड बढ़ेगा. हम आज ये टीम विन किया है, उस बच्चे को कुछ हम लोग टॉफी देंगे हमारा, या फिर हम लोग उसको स्टार कुछ दे देंगे, उनके कॉपी में कुछ गुड लिखेंगे, एक्सीलेंट लिखना स्टार्ट करेंगे. तो इससे क्या होगा कि वो मोटिवेट होंगे स्टूडेंट्स कि आज मुझे मिस ने 1 स्टार दिया, हाफ स्टार दिया है. तो उसके बाद हम लोग उसको भी गेम इंस्पिरेशन स्टार्ट करवाएंगे, इंगेज करेंगे उनको कि हर डे वो घर जाके भी बच्चा बोलेगा कि आज मम्मी या पापा को अपने डिस्कस करके बताएगा कि आज हमारे स्कूल में ये प्लान हुआ था, आज हमें ऐसा मुझे टीचर ने मुझे हाफ मार्क्स दिया है, मुझे उससे ज़्यादा इंक्रीज करना है, नेक्स्ट डे करना है. एंड दे हैव टू स्टार्ट, दे लर्न इन द होम. वो स्कूल की एक्टिविटी को घर में स्टार्ट कर देंगे पढ़ना. एंड देन दे स्टार्ट द सब्जेक्टिव इंटरेस्ट एंड दे हैव टू वर्क हार्ड इन होम. अगर हम लोग उनमें कंपटीशन लेके आ जाएंगे, इन सब्जेक्टली भी कंपटीशन लेके आ जाएंगे, दे हैव टू स्टार्ट वर्क हार्ड एंड एंजॉय देयर सेल्फ. नाउ टेक सम एग्जांपल ऑफ सुडोकू. आप लोग सुडोकू खिला सकते हैं, डाइस थ्रो करवा सकते हैं, पजल करवा सकते हैं. लाइक देम हम लोग लूडो, सबको हम लोग लूडो खेले हुए हैं, तो लूडो गेम हम लोग सेट कर सकते हैं. ओके, और भी हम लोग कुछ तरीका कर सकते हैं कि ट्राई ऐप सच एज खुद है, क्लास डोजो है, टाइप फॉर्म है हमारे पास में, कुछ है हम लोग का सेट. फ्रीक्वेंट क्लास कंपटीशन हम लोग करवा सकते हैं. डिस्प्ले कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी स्कोर बोर्ड कर सकते हैं. वीकली प्राइस कर सकते हैं हम लोग कि आप कुछ डिस्प्ले कर लीजिए कि ये आज ये विन किया, वैसा हमारा ये ग्रुप आज विन कर रहा है, वैसा ग्रुप हमारा विन कर रहा है. सेंड ऑनलाइन हम लोग बैच कर सकते हैं, अवार्ड दे सकते हैं, सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं कि योर अवार्ड इज गोइंग विनिंग इन दिस टाइटल एंड समथिंग, दिस ग्रुप आज विन, टीम ए विन, टीम बी सेकेंड रनर अप और फर्स्ट रनर अप. लूज नहीं लिखना है, फेल नहीं लिखना है, हमें रनर अप लिखना है. अगर हम लोग फेल लिख देंगे तो स्टूडेंट डिमोराइज, वो फिर नेक्स्ट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. उनको रनर अप लिखना है, उनको फेल नहीं दिखाना है, उनको बस बोला हाँ नेक्स्ट ट्राई एंड गेट. कभी जीरो स्कोरिंग नहीं देना है, उनको कुछ ना कुछ स्कोर देना है जिससे वो हमें हो सकता है कि वो उससे इंजॉय करके आगे बढ़े. हाँ, लेकिन उनको फिर एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं दे देना है कि फिर बोलेंगे नाउ आई हैव टू स्टार्ट. एक्स्ट्रा मार्क्स कभी नहीं.
इट मीन्स कि हमें धीरे धीरे करके काम करना है, चैलेंजेस लेना है, इंडिविजुअल चैलेंज लेना है कि आपको वो करना है, आप नेक्स्ट डे आपको ये टेबल सुनाना है, आपको फ्रैक्शन समझाना है, आपको क्लासरूम में ये एक्टिविटी को सेट करना है। ओके, तो ये सब बहुत सारी थिंग्स एक्टिविटीज़ जो हम स्टूडेंट्स को हमें बहुत सारा मोर इंटरेक्टिव और इंजॉयली हम लोग उसको मैथ्स को फील कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग मेक योर क्लास मीनिंगफुल बाय गिविंग concentrate example. Allow student to make their own problem. Encourage project based learning. हम सिर्फ अपने आप को हम लोग पढ़ाएंगे ऐसी बात नहीं है, हमें स्टूडेंट्स को भी इंकरेज करना है कि वो अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करें होम टू होम में। यूज टीचिंग एड्स, हम लोग टीचिंग एड्स को भी यूज कर सकते हैं, चार्ट्स, विजुअल, वीडियोस, फोटो स्टोरीज, सॉन्ग मॉडल्स। हम लोग बहुत एग्जांपल करते हैं, जैसे कुछ एक सॉन्ग है हमारा, आप लोग बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग है 1 2 3 4 5, तो वैसे सॉन्ग्स विजुअल कुछ कुछ थोड़ी देर का। अब ये नहीं कि हम लोग स्टूडेंट को पूरे सॉन्ग ही क्लियर कराने लगे, कुछ स्मॉल क्लिप्स हमें लेना है जिससे स्टूडेंट्स अपने लिसनिंग पावर को इन्हेंस करके वो मैथ्स को थोड़ा सा इंजॉय कर सके। लाइक पाई सॉन्ग हम लोग देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब से बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। हमारे पाई सॉन्ग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास में है। हम लोग कोई गेम प्ले कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ में मिलकर हम लोग कोई गेम प्ले करते हैं, लाइक देंगे हु डजंट लाइक टू प्ले गेम, है ना, प्रिंटेबल गेम और डिजिटल गेम। एवरीवन हैव टू प्ले द डिजिटल गेम, हाउ, लाइक एज PUBG game, every student raise their hand and then yes sir, we know that the PUBG game, the scoring and functioning and that part. Games are perfect way to student to learn and have fun at the same time. There are wide variety of games type that we can when teaching or reviewing maths concepts. Off the top of my head, I can think of ping pong, Sudoku, maths race, bonus ball, questions, dice, estimation, stand on set, all who think that two in binomial stands, binomial monomial stands, and that means odd even function. We have to sit there planning, like Monday even numbers are sit the first bench, Tuesday odd numbers are the sit in the first bench, second bench and third bench. Like this odd even concept, प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट में, तो प्राइम नंबर, रोल नंबर हम लोग बोर्ड पे लिख देंगे कि आज हमारे पास फॉर नोइंग द प्राइम नंबर, स्टूडेंट कैसे प्राइम नंबर सीखेंगे, तो हम लोग बोर्ड में पहले से रोल नंबर लिख देंगे 2 3 5 7 एंड ऑनवर्ड ऑल प्राइम नंबर, ये रोल नंबर आज हमारे इस टाइप से बैठेंगे। तो ये हमारे पास में स्टूडेंट जो ये फन है, लर्निंग है, काउंटिंग है, काउंटिंग के साथ में मैथ्स के साथ वो सीख पाएंगे कि ये जो मेरा रोल नंबर है ये मुझे प्राइम रोल नंबर मिला हुआ है, मेरा फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, तो जो रोल नंबर 2 जिस स्टूडेंट का होता है उसको बताया जाए हमारे क्लास में, उनको डील किया जाए कि बेटा ये आप जो 2 आपका रोल नंबर है ये फर्स्ट प्राइम नंबर है, और ये सिंगल ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, इसके बाद सारे जो प्राइम नंबर है वो हमारे पास में ऑड नंबर से स्टार्ट होते हैं। तो वो स्टूडेंट आई थिंक मुझे लगता है कि अपने लाइफ टाइम में वो कभी नहीं भूलेगा कि वो 2 से जो प्राइम नंबर है वो स्टार्ट होता है और वो सिंगल एक डिजिट का इवन नंबर है। अदरवाइज आप किसी भी स्टूडेंट, अधिकतर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स टेल मी प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर, द आंसर 1 सर, आई थिंक 1 और 3 सर, और दोज नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय द 2, उनका आंसर ये होता है। तो इस जो मिसकंसेप्शन है उसको हटाना है, तो उसको हम लोग इस गेम के मेथड से हम लोग हटा सकते हैं। नाउ वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड्स। हॉपस्कॉच मैथ्स के बारे में हम लोग कुछ सीखते हैं कि हमारा क्या है। Set us hopscotch grids with a calculator layout. With older kids, we can include the square roots. Now the square roots are some important topic, square roots. अब हम लोग देखते हैं एवरीबॉडी हम लोग स्क्वायर रूट निकालने में बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन करते हैं, तो हम लोग स्टूडेंट्स को कैसे स्क्वायर रूट ईजी तरीके से सिखा सकते हैं। बहुत सारा ईजी तरीका है, हम लोग स्क्वायर 2 डिजिट का 3 डिजिट के स्क्वायर रूट्स आप सिखाते हैं। सिंबल एंड नेगेटिव इंटीजर्स, बच्चे इंटीजर्स में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। Student first hoop on the number, then the operation, another number, the equal sign, the finally the answer. For double digit answer, student can split their last hoop so that their left foot hand lands on the digits in the tens place and their right
foot lands on the digit in the one place. Okay, make it hand on. Have you ever been in the workshop or meeting where the presenter talk on and on? Do you get freely, or does your mind wander somewhere else? Well, I have a secret to tell. Kid feel us some way. Try turning a lesson that may normally include a lecture and a worksheet into a interactive ones. For example, learning from nature. हम लोग नेचर से लर्न कर सकते हैं. Shapes, area, volume, length, height, congruency, patterns, similarity, etc. and other set. For example, हम लोग देख सकते हैं कि एग्जाम्पल है कि नेचर में मैथ्स को कैसे सेटअप किया जा सकता है. नेचर बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं. इसके ऊपर बहुत अच्छा हमारे एक ग्रेट मैथमेटिशियन जो है बाई डेल्विन जी ने बोला है हमारे पास, मैथ इज अबाउट पैटर्न एंड पैटर्न आर व्हाट लाइफ इज अबाउट. मैथ एक पैटर्न है और मैथ पैटर्न क्या है, एक लाइफ है हमारा अबाउट है. हर पैटर्न में एक मैथमेटिक्स है हमारा पास में. तो ये हमारे एक मैथमेटिशियन ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, डेल्विन जी ने हमारा बताया है. आप भी इसको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं. मैथ्स का पैटर्न के साथ हम लोग काम कर सकते हैं. तो वो एग्जाम्पल हम लोग बहुत डे टू डे लाइफ में हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स को आप जब भी हम लोग देखते हैं, हम लोग को एग्जाम्पल जाते हैं, हमारे पास बिल्डिंग का स्टेप कैसा है. मोस्ट ऑफ बिल्डिंग सम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हाउस स्क्वायर से आपके हैं, कुछ हाउस हमारे पास में वर्टिकल हैं, कुछ हमारे पास में हाउस जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल हैं. लेट अस सी फ्लो द देम इन द नेक्स्ट स्लाइड. Mathematical patterns and forms exist everywhere in the nature. This project will explore the elements in nature. They convey various mathematical concepts. These concepts include patterning, shape of geometry, equation, and principle. Let us see the example. Please watch. Logarithmical spiral. Please watch the video seriously. We can take the example of cell for logarithmic spiral. For example, pattern. Everybody seen the zebra. In zebra codes, alternating pattern of black and white are due to the mathematical rules. The pigmentation chemical of the skin, black and white strips. Dendrochronology is the scientific method of dating a tree based on the amount of ring found in the course. For turtles have growth ring called spots which have hexagonal in shape. It is also used to figure out the age of the turtle. हम लोग काउंटिंग करते हैं, आप लोग सीन कर रहे होंगे कि आप लोग बच्चों को दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 है. इससे शेप्स हम लोग उसके हेक्सागोनल शेप बता सकते हैं कि कितने उसके हेक्सागोनल शेप्स हैं. उससे काउंटिंग एज हो सकता है, टर्टल का एज हम लोग फाइंड कर सकते हैं. कुछ मॉडल्स आप लोग बना सकते हैं सिमेट्रिकल 2D एंड 3D शेप लाइक प्रिज्म, पिरामिड, कॉन्सेप्ट मैथ टू नेचर. आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग नेचर बना के उसको बना सकते हैं कि क्या शेप्स है, क्या उनका आर्गुमेंट है, क्या कुछ कर सकते हैं. कुछ हम लोग एक्टिविटी हैंड आउट करते हैं. आइडेंटिफाई वेरिएबल एंड कांस्टेंट. आप लोग ये कुछ एक्टिविटी कंप्लीट कीजिए. आइडेंटिफाई वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. आपको वेरिएबल एंड कांस्टेंट इस फिगर में आइडेंटिफाई करना है. आपके पास सिर्फ 2 और 3 मिनट्स है. आप आइडेंटिफाई कीजिए और रीजन बताइएगा, फिल कीजिएगा. हरी अप.
Okay, fine. Now let us go to the next slides. Identify the value of pi. Very interesting. The value of pi 3.1415926535598. It's so difficult, but we have the topic and we have the song to understand the value of pi. Now listen carefully for the remembering for the value of pi. Let us learn how to remember the value of pi with the help of this song. Now start. Okay, excellent song आप enjoy कर सकते स्टूडेंट को सुना सकते हैं आप सभी को. Now states banking interest, profit, loss, census score of batsman's temperature, humidity. Okay. Now with the help of mathematics we have to start the some statistical data like banking. In bank में हम लोग जाते हैं statistical data and we have to purchase our bank statement whole year in month how much we have to use the credit and debit of the statement of our interest of bank. We have to profit something goods, we have to sell some goods, purchase some goods, profit or loss, census for every time, score of batsman, temperature, yes, 31 degrees Celsius or minus 5 degrees Celsius in some cold cities and some hottest cities like Cherrapunji is the hottest rainfall during the winter season of the world, like humidity. Compare and contrast. Compare and contrast. We can put some example like which crocodile has a bigger mouth and which has one of the less to the make the students aware the greater and smaller. हम लोग greater and smaller को भी think out side से करते हैं. Which one are greater? Less than, greater than. Okay, the crocodile shape. For example, have some figure have to more figure and that less figure. Crocodile have the right face and left face. This is the called the greater than and less than concept. आप क्या करो कि कुछ counting digits कर लो. 37 is less than 80, 61 is greater than 8, 3 is equal to 3. For example, 3 by 4 is greater than 3 by 5, but 4 by 3 is less than 5 by 3. That is the part of the concept, the less than an example. Greater or smaller example, comparison the number. Okay, next. Bring in real objects. Shape, rectangle, picture, book for picture, book for kids, shapes in real life. For example, every kids watching the TVs and computer or like mobile. So shape of the mobile, every student say about, yes sir, we have to see the mobile or TV in our home. Yes, this is the shape of the rectangle, some book, this is a cuboidal table when the students are sitting or drinking, eating something. Circumference of radius of diameter, speed, distance, time. हम लोग example ले सकते हैं for cycle. Okay, bicycles use कर सकते हैं. The wheel of the bicycle. This is the circle. Okay, and the diameter, it means whole the wheel have to call the length of the wheel. It's called the circumference. Radius, spoke of the wheel. This is called the radius. Diameter, the full length of the wheel.
two spokes are straight way, that's the called the diameter. Speed, we have to how much distance travel in the sports ground, कैसे हम लोग स्पोर्ट्स ग्राउंड में डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, कितने राउंड हम लोग स्टेप आउट कर पाते हैं, इससे हम लोग उसको टाइम निकाल सकते हैं. दिस इज द यूज ऑफ मैथ्स. मैथ्स थॉट स्पोर्ट्स, मैथ्स थ्रू स्पोर्ट्स. हम लोग स्पोर्ट्स के थ्रू में मैथ्स कैसे सीख सकते हैं. नाउ वी हैव टू स्टार्ट. वी कैन यूज क्रिकेट पिच टू टीच अबाउट लेंथ एंड ब्रेथ. ओके, हम आप सीन कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को आप लोग दिखा सकते हैं मैथ्स का पिच, आप लोग क्रिकेट का पिच दिखा सकते हैं. उसमें आप लोग उस पिच से आप लोग लेंथ है तो 22 यार्ड्स का पिच हम लोग स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट हैव टू नोन अबाउट द मैथ क्रिकेट पिच ऑफ द 22 यार्ड्स. दिस इज द कॉल्ड. उनको हम लोग ग्राउंड में बता सकते हैं कि कितने मीटर है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है. तो ये सब लोग लेंथ एंड ब्रेथ का कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं. व्हाट इज द एरिया निकालना सिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को. Please see the slide and find out the area of the field. Okay, everyone, please find the area of the field. Okay, dear colleagues, uh, we can use a volleyball to demonstrate the shape sphere, both radius and circumference. Integrate other subject, experimental and art integrated. अब हम लोग एवरी सब्जेक्ट जो है, अदर सब्जेक्ट जो है, नॉट लाइक अ मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, वी हैव टू इंटीग्रेट देमसेल्फ. हाउ मैथ्स हेल्प दो सब्जेक्ट और दो सब्जेक्ट हेल्प द मैथ्स. एवरी सब्जेक्ट इन ईच अदर आर हेल्पिंग टू बोथ ऑफ देम. सभी सब्जेक्ट एक दूसरे को हेल्प करते हैं. तो हम लोग मैथ्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं अदर सब्जेक्ट के लिए. फॉर एग्जाम्पल, using geography in mathematics, एवरेज मंथली रेनफॉल जनवरी टू जून, ये हमारा एग्जाम्पल है. एवरेज कैलकुलेट करना हम लोग सीखते हैं कि मैथ जनवरी में इतना हुआ हमारे पास में, फरवरी में हमारा इतना रेनफॉल हुआ, मार्च में इतना हुआ हमारे पास में, अप्रैल मई एंड जून में इतना हुआ. सारे रेनफॉल को हम लोग सेटअप करते हैं. उसके बाद हम लोग एवरेज रेनफॉल निकालते हैं कि ना हाफ ईयरली हमारा रेनफॉल ये है, ईयरली हमारा रेनफॉल ये है. बट रेनफॉल कम अंडर ज्योग्राफी, concept is geography, but we use mathematics to find the average rainfall. Thus this is the integration function. integrate कर गया हमारे पास में कि हमने मैथ्स को ज्योग्राफी के टॉपिक के साथ में इंटीग्रेट करके कि एवरेज रेनफॉल हम लोगों ने फाइंड किया. तो ये एक सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन है. हम लोग कैसे सब्जेक्ट के थ्रू भी इंटीग्रेट करा सकते हैं मैथ्स के साथ में कि हमारा मैथ्स जो है हमारे पास में, हमारा आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ में हमारा मैथ्स का इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है. नेक्स्ट, think out of the box, origamic stories. Do you know about the origami? This is the Japanese word. ये एक Japanese word है जहाँ पे एक आर्ट फोल्डिंग पेपर इनटू डेकोरेटिव शेप एंड फिगर. एवरीबॉडी, हम लोग हर कोई, हमारे जो जूनियर हम लोग जब बचपन में या फिर स्टूडेंट्स जो हैं, like they make a organic folding paper, like making the boats, aeroplanes, something designing. तो critical thinking they find out the, ये हमारा आर्ट में हम लोग क्या ले रहे हैं, कल्चर में ले रहे हैं हम लोग, डेकोरेटिव शेप करते हैं. फॉर शेप हम लोग देख सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग में तो हम लोग यूज कर सकते हैं. लेट अस सी द सम एग्जांपल्स. लॉर्ड गणेशा with the you student have make the paper like the triangle shape,
और गणेश वो जो हमारे पास में है, गणेश का जो हमारे पास सूंड है वो हमारा गणेश ट्रायंगल शेप में बच्चों ने स्टूडेंट को यूज़ किया है। फिर देखिए वो हमारे पास में एक सिलिंड्रिकल शेप है, एंड बोथ द इंड हैव द यूज द कोनिक पार्ट। द uses of this type of the part is integrated function. This is the origami. Now we have to start the creative thinking. Okay, dear colleagues, तो ये सब हम लोग ये सब सारे एक्टिविटीज़ करके हमारे जितने भी मैथमेटिकल टूल्स है यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे हम लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं कि कैसे हम लोग मैथ्स को एक इंजॉयफुल मोमेंट के साथ में काम कर सकते हैं। क्या हम लोग उसको एनर्जेटिक वे से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं कि मैथ्स एक फ़न के साथ में हमें मैथ्स को लर्न करना है हमारे पास में। नाउ लेट अस सी द सम pros of the gamified classroom in higher education. Increase student engagement. Studies have shown that students are more likely to spend time playing a learning based game if you are using a reward system. Badges and points help translate the work the student is completing into a tangible benefit. By increasing engagement, you will also see a rise in learning retention through gamification of learning. Students will be able to relate the content easier through practice than much reading or watching or lecture. Create enthusiasm. Gamify learning can be used to foster feeling of enthusiasm toward the subject matter, especially in subjects that students struggle with, like maths. By creating a gamifying learning with rewards, students are become excited and competitive while learning through quiz, uh, some examples like polls, game like Sudoku, like dice game, of other collaborative learning methods with their peers. Provide instant feedback. Most gamification app or system allow for instantaneous feedback such as leaderboards and dashboards, which student can use to see why they stand among their peers. This information can push a student to try the quiz or activity again to get a higher placement and creative motivation for further lesson engagement. Make social concentrations, connections. What is the need of the hour? First of all, think the use blend strategy while teaching mathematics to create interest in teaching, learning in mathematics, to engage higher order thinking skill in learners, to enhance for creative critical thinking, collaboration of communication. Important thing of mathematics, important things for mathematics teacher. अब हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम सभी मैथ टीचर्स को थोड़ा सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है, मैथ जो सब्जेक्ट हमारे पास में, वो सब सारे थिंग डे टू डे लाइफ यूज होता है और एवरी स्टूडेंट्स फियर अबाउट द मैथ्स। तो इस फियर को हम लोग हटाना है तो उसके लिए थिंक करना होगा। एवरी मैथमेटिक्स टीचर हैव टू थिंक सम टॉपिक्स लाइक मेक मैथमेटिक्स असेंबल टू ऑल। हमें सारा मैथमेटिक्स एक्सेसिबल करना होगा मैथ्स टू ऑल के लिए। हम लोग ये नहीं करना होगा कि ये स्लो लर्नर्स है, ये
हम लोग का फास्ट लर्नर्स है, इस पे हम लोग को ये काम नहीं करना है। हमें सभी के लिए मैथ्स को ऑडिबल एज वेल विजिबल बनाना होगा कि हम सभी मैथ्स, हमारा जो है, हमारे सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथ्स को कम से कम अच्छे से लाइक कर सके। इंकरेज स्टूडेंट्स टू हैव पैशन फॉर लर्निंग टू सब्जेक्ट्स, स्टूडेंट्स को इंकरेज कर सके हम, कि स्टूडेंट्स हमारा जो है वो मोटिवेट हो सके टू लर्न द मैथमेटिक्स। क्रिएट जॉयफुल इंडिपेंडेंट लर्निंग इन्वायरमेंट, हम बच्चों को एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, वो आराम से पूछ सके, हमें डरे नहीं कि आज हमें ये टॉपिक से समझ नहीं आया तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा। वो बच्चे डरेंगे तो अगले नेक्स्ट क्लास में भी वो फिर उनका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास पहुंच जाएंगे वो। नॉलेज ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स टू क्रिएट टू नीड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स। मैथमेटिक्स इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट फुल ऑफ इनक्रेडिबल क्रिएटिविटी। हम लोग ये कर सकते हैं कि मैथ एक बहुत ही ज्यादा जॉयफुल सब्जेक्ट है, उसको क्रिएटिव के साथ हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्रिएटिविकेशन है, क्या नहीं है, हम लोग उसको कैसे सेट कर सकते हैं, क्या नहीं हम लोग कर सकते हैं, हम लोग उसके साथ इंगेज कैसे कर सकते हैं, कैसे उस चीज को हम लोग एकदम सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि हमारा पास मैथ्स है, बच्चे हम लोग उस कंडीशन से आगे हम लोग पास आके मैथ्स को इंजॉय करके हम लोग उस सब्जेक्ट को ले सके। नाउ with these words, I would like to conclude this suggestion. Conclude this session. I take this opportunity to thank our Honorable Principal Sir COE Patna, and of course the society makes our teachers. Thank you all. If any of the participants have any things more to discuss with our admin, you are the welcome. Some question asks. अभी नहीं दिखेगा, पता है क्या? मीटिंग से निकल गए। Okay, dear participants, I would request to participant, if there any doubt related to today's training session, please ask. I will try to resolve all your doubts. Thank you.
Please wait for the attendance link. Yes, attendance cum assessment link form link will given in the chat box. Please fill the attendance form. Thank you very much. Thank you from my side. Have a nice day. Okay, everybody.